हमने सेल स्ट्रैटेजी पे वेबिनार लिया था लास्ट ट्यूसडे को 5 जन को। हमने उसमें 6 सेल स्ट्रैटेजी सीखे थे। Anyone was present within that? So all of you are new? No one was present? Me. Okay, yeah, I know. Thank you, Manas ji, for your comment. Anyone else? So we could not revise last time because only one was there. So 5-10 minutes meanwhile people are joining, we may talk about few of the sales strategies. Prior to that, those who are into business and those who are into like want to start their business, so those who are startup, just let me know you are startup. Those who are already running their business, just startup S for business B, and entrepreneur means already they have grown their businesses. So like that, B, E, and S you have to type on the chat box. So let me understand how many of you are really in the business and really want to grow your business. So let me understand, please. Otherwise, you can unmute yourself and tell me that you want to, in why, what is your objective or aim for joining this webinar today. E, entrepreneur. Thank you, sir. Anyone else in business or startup or want to start? So those who want to start, so they may write W, want to start. Others are not into business. Those who are IBC, they may also write IBC. W, want to start. Okay, thank you. And those who are IBC, they may write IBC. Okay, yeah. So we are having 2, 3, 4 IBCs, 2 entrepreneurs. Okay, thank you. Thank you very much. So last time we were discussing sales strategies, and in today's webinar, we are not going to discuss that many strategies, but we are going to understand some business models. So I'm going to make you understand the process of consultative selling, what is grow model, so all that kind of thing. Those who are already IBC, they might be already knowing it. So let's have some revision on consultative selling and how to use grow model in selling. So now it's almost 7:05, so we may start now. 7:07 now. My screen is visible to all of you. Just confirm. Please confirm. Yes? Okay. Thank you. So let's begin with today's presentation. Okay, how many of you don't understand Hindi? Because we follow the practice of speaking in Hindi rather than English. So anyone who don't understand Hindi, so that we can start with Hindi then. कोई है जिनको हिंदी समझ में नहीं आता? तो इंग्लिश की बजाय हम हिंदी प्रैक्टिस करेंगे. कोई है क्या? Just a minute, I need to check the chat. Everyone understand Hindi, no? Okay, so let's begin. Art of selling. Now, the golden statement first. People don't like to be sold, they like to be helped. Any comment on this?
anyone, those who get any kind of sales call, जब भी आपको sales call आता है तो कैसे लगता है? अच्छा लगता है या फोन काट देते हो, फोन नहीं उठाते हो? So of course, no one like to be sold, right? So if at all you're having the attitude of selling, in that case, people will actually run away from you. Rather, if you are having attitude of helping others, how actually you could solve their problem, how you could actually make them help out in whatever pain areas they are having. So obviously they will at least like to speak with you. Otherwise, they will run away from you. Just a minute, someone is joining still. So everyone knows any comment about this? Agree with this golden statement? Let's move ahead. So this is what is the complete procedure. Now we need to actually block this. In Google Meet, we have to come across the screen. So that is what is the problem. Abhishek, can you see other people joining? Can I make you admin so that I can start with the presentation? Yes, ma'am. Yes. Can you see how to make you admin here? I can't see any kind of option, but anyways, now we will not allow people to join because again I have to switch from one window to another window. So that is the problem happening. So now let's begin. This was our golden statement. First window, people don't like to be sold, they like to be helped. So how to actually come out with that selling kind of attitude and come up with the helping kind of approach, that kind of consultative selling approach we are going to see today. So how actually moving from that attitude to help in solving customers' problem or achieving their goals, that's what we are going to learn in today's presentation. Then what is the sell is 90% conviction and only 10% communication of your conviction. So if at all you might have there are 2-3 people who have attended last time's webinar. So there we were discuss the first strategy wherein we talk about product conviction. So if you are having product knowledge, if you're having conviction on your product, so that actually that works 90%, your communication works 10%. So that what it means, all means in sales. तो सेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका आपके प्रोडक्ट के ऊपर कितना भरोसा है, आप कितना जानते हो प्रोडक्ट के ऊपर एंड कितना आप अच्छे से उसको सचमुच उसके फायदों को पहचानते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आपको अच्छा सेल करना है या सेल को इजीली क्लोज करना है. तो उसके लिए नाउ let's see what is the process. So the complete process is of course starting with the lead generation. You all know how we'll generate lead online, offline, through different kind of campaigns. We may generate lead. So once we generate lead, we need to manage and nurture that lead. That is what is the next process or next step whenever we are doing sell. So this is what is the complete process of sell. After managing and nurturing those leads, we may connect with them and we understand their needs, actually what they require, what they want from us, what are their pain points, which actually problem we could solve for them. So that what understanding, वो सारा understanding हमें यहाँ पे करना पड़ेगा understanding customers needs में. एंड द नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद आता है कनेक्टिंग नीड विद द प्रोडक्ट. तो फिर उनकी जो नीड है उसको हमारे प्रोडक्ट के साथ आप किस तरह से मर्ज कर सकते हैं, किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं. आज के जो पूरा अपना वेबिनार होने वाला है उसमें कनेक्टर डिटेक्टर पे ही मैं बात करने वाली हूँ. तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक्चुअली कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया सिर्फ 10% है, कनेक्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो कनेक्ट है ये 90% प्ले करता है रोल. तो इसलिए हम कनेक्टर के ऊपर बात करेंगे कि कनेक्ट कैसे करना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्चुअली.
उसके बाद फिर एक बार कनेक्ट हो गया तो फिर उसको ऑब्जेक्शन आएंगे। अगर वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो ऑफकोर्स वो ऑब्जेक्शन नहीं निकालेगा, लेकिन अगर हाँ वो इंटरेस्टेड है और वो सचमुच चाहता है तो ही कस्टमर की तरफ से ऑब्जेक्शन आएंगे। जिसको ऑब्जेक्शन नहीं है, जो कंप्लेन नहीं कर रहा है, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हमने एक पॉइंट नेल लीड स्कोरिंग का किया था, तो उसमें हमने स्कोर किया था हर लीड को कि किस तरह से लीड का स्कोरिंग करना है, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कोल्ड है, वार्म है, हॉट है, कौन सी कैटेगरी में है, कौन सी लीड पे ध्यान देना है, कौन सी लीड पे ध्यान नहीं देना है। ये हमने लास्ट टाइम अच्छे से देखा था। तो ये वो पॉइंट है जहां पे हमें लीड को स्कोर करना है। लास्टली जब फाइनली उसके ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाएंगे, आपने उसको कनेक्ट कर दिया, फिर आपका क्लोजिंग पे आ जाएगा। एक बार सेल क्लोज हो गया तो उससे रिपीट बिजनेस किस तरह से आपको मिले, तो उसके लिए आपको या तो क्रॉस सेल करो या तो अपस्केल करो। तो अपसेलिंग में आपको ऑफ कोर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे। जैसे आप मैकडी में जब जाते हो तो मैकडी में आपने समझो एक चीज ऑर्डर की तो वो हमें पहले से ऑप्शन बता देते हैं, इतना सा ऐड करेंगे तो पूरा मील हो जाएगा, ये ऐड कर दो, वो ऐड कर दो, एंड लाइक दैट एक्चुअली दे कीप ऑन टेलिंग अस। तो हमें लगता है ठीक है, अच्छा इतने में ये मिल रहा है, वैसे इसका मतलब उनको जो सेल करना है वो उसका प्राइस वो कम करके, और जो हमें लेना है उसका प्राइस ज्यादा करके वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और क्रॉस सेल करने की कोशिश करते हैं। तो यही सारी चीजें एक्चुअली पूरी सेल प्रोसेस में आती है कि एक बार क्लोजिंग हो गया उसके बाद उसको वहां पे क्लोज हो गया तो छोड़ नहीं देना है, उसको फिर से नर्चर करना है क्रॉस सेल करने के लिए, अपसेल करने के लिए। सो दिस इज व्हाट इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ सेलिंग। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आज का कि कंसल्टेटिव सेलिंग किस तरह से करनी है। ऑफ कोर्स हमने आज का गोल्डन स्टेटमेंट ही ये दिया था कि लोगों को सोल्ड होना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको हेल्प करना अच्छा लगता है। तो अगर हम उनको एज अ कंसल्टेंट हेल्प करना चाहे, हैंड होल्ड करना चाहे, तो ऑफ कोर्स दे विल लव टू एक्चुअली वर्क विद अस एंड दे विल लिसन टू अस। सो दैट्स हाउ हमें आज के ये पूरे वेबिनार में अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से हम सेल्स को एक कंसल्टेटिव प्रोसेस करके ले और किस तरह से हम क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को समझे, कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले तो कंसल्टेटिव सेलिंग जो है ये सेलिंग अप्रोच बिल्कुल नहीं है। ये प्रोडक्ट का नहीं, ये सॉल्यूशन का ध्यान रखता है कि किस तरह से आप कस्टमर के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हेनेवर इट टर्न्स टू कंसल्टेटिव सेलिंग। देन दूसरा पॉइंट ये है कि ऑफ कोर्स ये हमने गोल्डन स्टेटमेंट में ही ले लिया कि लोगों को हेल्प करना, अगर हम लगता है उनको कि हेल्प कर रहे हैं तो वो आपका सुनेंगे, अगर उनको लग रहा है कि सेल कर रहे हैं तो कोई भी नहीं सुनेगा। इवन ऐसे लोग जो आपको ऑलरेडी जानते हैं उनको भी अगर आप सेल के एटीट्यूड से कुछ बताना चाहोगे ना तो वो आपके सेल कॉल भी अटेंड नहीं करेंगे। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपके क्लाइंट एक पिक मोमेंट पे आके अगर आपका कॉल उठा नहीं रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो अप्रोच है वो सेलिंग की टुवर्ड गया है और उनको अभी लग रहा है कि आप उनको बेचने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट तक जब तक आप उसको नर्चर कर रहे हो तब तक भी आपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, आपको उस पर्सन के प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंस देनी है और किस तरह से ये प्रोडक्ट उसकी ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा, इस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए। तो अगर आपका एटीट्यूड सही है तो फिर वो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा कि जहां पे पूरा नर्चर हुआ हुआ क्लाइंट जो है वो फिर आपके कॉल उठाना बंद कर दे। तो उसके लिए इस सेकंड पॉइंट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड पॉइंट आता है कि कंसल्टेटिव सेलिंग में मतलब क्यों करना है और क्या जरूरत है, तो उसके बारे में हम देखेंगे आज कि हमें क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है आज का ग्रो मॉडल। अब ये इस ग्रो मॉडल को यहीं पे समझ लेते हैं कि ग्रो मॉडल में हम क्या करते हैं, यानी कि जो हमने कंसल्टेटिव सेलिंग की बात की है, हाउ टू डू दैट, कैसे करना है। तो कंसल्टेटिव सेलिंग करना मतलब सबसे पहले या तो उसका पेन पॉइंट समझना पड़ेगा, पेन एरिया क्या है, भाई क्यों खरीदना चाहता है ये प्रोडक्ट। सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप सॉल्यूशन बेच रहे हो। तो सॉल्यूशन बेचने के लिए उसका पेन पॉइंट पता होना चाहिए। पेन पॉइंट क्या है ये अंडरस्टैंड नहीं हुआ, समझो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कहीं पेन है, तो फिर क्या अंडरस्टैंड करना है, इसका गोल क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको पूछो। आप 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, 5 साल, मतलब उस टाइप का अगर आपका प्रोडक्ट है जो उसको उसके करियर में हेल्प करेगा। तो
ऑफ कोर्स अगर आपका प्रोडक्ट एक समझो मोबाइल फोन है, तो उसमें आप उनके गोल जान के कुछ नहीं कर सकते हो, राइट? तो ये भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब के आप उसकी पोजिशनिंग, कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है। पेन पॉइंट अंडरस्टैंड करो। अगर पेन पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो गोल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। देन सेकंड, रियलिटी क्या है? रियलिटी मतलब उसका जो भी प्रॉब्लम है उसकी करंट सिचुएशन क्या है, अभी फिलहाल उस कौन से मोड में है वो प्रॉब्लम। वो बहुत ज्यादा अर्जेंसी मोड में है, हाँ मतलब प्रॉब्लम तो है लेकिन पता नहीं करना है नहीं करना है, उस मोड पे है। तो उसकी करंट रियलिटी क्या है उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी, दैट इज द करंट पोजिशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, देन ऑप्शंस। अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी है। आपके पास अगर रेंज ऑफ प्रोडक्ट है तो आपने उनकी नीड आइडेंटिफाई की। नीड आइडेंटिफाई होने के बाद आप उसका फिक्सिंग करो। फिक्सिंग मतलब कौन सा प्रोडक्ट हमें इनको प्रोजेक्ट करना है, कौन सा प्रोडक्ट अगर इन्होंने लिया तो इनका जो अर्जेंट प्रॉब्लम है, जो अभी के अभी सॉल्व होना बहुत जरूरी है, वो वाला आइडेंटिफाई हो जाएगा। एंड वो प्रॉब्लम अगर एक बार इनका सॉल्व हो गया तो फिर वो जो है बाकी हम उसको क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे। एंड द लास्ट इज वे फॉरवर्ड, जहां पे हम या तो सेल को क्लोज करते हैं या फिर सेल ऑलरेडी क्लोज हो गया तो फिर क्रॉस सेलिंग की तरफ जाते हैं। तो ये पूरा जो अप्रोच है, इस अप्रोच को कंसल्टेटिव सेलिंग कहते हैं। कंसल्टेटिव सेलिंग में मोस्टली कोचिंग वाला जो मॉडल है, कोचिंग में जनरली क्या होता है, अभी हमें जब हम सुनते हैं कि हाँ कोई कोच इनको गोल सेटिंग में हेल्प करेगा या, तो हमें ऐसा लगता है कि वो कोच उनको सजेशन देने वाला है। एक्चुअली ऐसे नहीं होता है। काउंसलिंग अलग होता है, कंसल्टेटिव या फिर कोचिंग, कंसल्टेशन या फिर कोचिंग ये बहुत डिफरेंट है। कंसल्टेशन में क्या होता है कि फर्स्टली एक्चुअली यू हैव टू डू द नीड एनालिसिस, पूरा आइडेंटिफिकेशन, पूरा रिसर्च आपको करना पड़ता है। उसके बाद आपको बहुत ही पावरफुल क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं क्लाइंट को। और ये जो पावरफुल क्वेश्चनिंग है, ये पावरफुल क्वेश्चनिंग इस वे से जाती है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कस्टमर को ही ढूंढना है। आपको नहीं बताना है कि कस्टमर को क्या करना है, बिकॉज आप जो भी सॉल्यूशन बताएंगे वो आपके लिए सही है, कस्टमर के लिए सही है या नहीं वो कस्टमर डिसाइड करेगा। तो कंसल्टेशन में आपको कोई भी सजेशन नहीं देना है। ये बात बिल्कुल आप लिख लो, ध्यान में रखो, या फिर बिल्कुल उसका एक गार्ड बांध लो कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी सजेशन नहीं देना है। आपको नहीं बोलना है कि आप ये ले लो वो ले लो। हाँ ये जो आपका प्रॉब्लम है ये इससे भी सॉल्व हो सकता है तो आप देख सकते हो। मीन्स यू हैव टू ट्विस्ट योर लैंग्वेज in such a way that it should actually look like कि आप उनको सिर्फ गाइड करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको मतलब एक बर्डन ना बने आप, कि आप उनको बता रहे हो नहीं ये खरीदो ये नहीं, नॉट लाइक दैट। So this is what is the right procedure wherein you will actually go through the particular procedure, handhold your client and help them to come out of their problem and give the solution with your product. So that is what is called as consultative selling. तो कोई तो वेट कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा किसी को ले लेती हूँ, तब तक यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज है तो पूछ लो। आप मैसेज कर सकते हो या फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। कंसल्टेटिव सेलिंग हमने देखा है, हमने ग्रो मॉडल देखा है अब तक। इसमें किसी को कुछ पूछना है या फिर किसी को कुछ शेयर करना है? एनीवन वांट टू ऐड एनीथिंग? Meanwhile people are coming, so we will just take them in. Yes, nothing? Should we move ahead? All well? Everything going fine? Solves one's problem. ओके चले फिर आगे बढ़े। किसी को कुछ नहीं पूछना है, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ ठीक जा रहा है ना? ऑल इज वेल? अरे बताओ मैं दीवारों से बात नहीं कर रही हूँ, अपना सेमिनार चल रहा है, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हमें हमारा सेल ग्रो करना है, राइट? तो थोड़ा सा इंटरेक्शन करोगे तो मुझे लगेगा कि मैं लोगों को बता रही हूँ। वेल मैम, ओके, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, लेट्स प्रोसीड। ठीक है चलो, आप हो तो ये तो पता चल गया, मैसेज आ रहे हैं तो ये तो पता चल गया, तो ऑल इज वेल, ठीक है।
ओके देन लेट्स मूव ऑन। अब तक हमने, जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, अब तक हमने सबसे पहले गोल्डन स्टेटमेंट देखा, उसके बाद हमने ग्रो मॉडल को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद हमने अभी पूरी कंसल्टेटिव सेलिंग की प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया है, उसको अंडरस्टैंड किया है। तो वो 2-3 स्लाइड हमारे हो चुके हैं, बट डोंट वरी, यू हैव नॉट मिस्ड मच। तो अभी स्टार्ट करते हैं आगे के स्लाइड से। ओके सो now today's most important strategy is become a connector detector। अभी जो कंसल्टेटिव सेलिंग की हमने पूरी प्रोसीजर देखी थी, उस प्रोसीजर में हमने अंडरस्टैंड किया था ग्रो मॉडल को। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो पॉइंट है, आपने बहुत बार देखा होगा कि मेटल डिटेक्टर होते हैं एयरपोर्ट पे, सारे मॉल्स के गेट पे। वो क्या करता है, अगर आपके पास, वो सिक्योरिटी गार्ड चेक करता है आपको कोई भी मेटल है तो उसको वो टिक 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 वो मशीन बजना शुरू हो जाती है, अगर आपके पास कुछ तो गड़बड़ है तो कैसे वो मशीन आइडेंटिफाई कर लेती है कि आपके पास मेटल है या नहीं। वैसे ही जैसे एक मेटल डिटेक्टर उस मेटल को अंडरस्टैंड करता है, वैसे ही आपको वो कनेक्टर निकालना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट को क्या चाहिए। आपके क्लाइंट को मैं, मतलब कैसे मैं मेरे क्लाइंट को अंडरस्टैंड करूं, मेरा जो टारगेट ऑडियंस है उसको मुझसे क्या चाहिए, उसको मैं किस तरह से हेल्प करूं, उसके लिए वो हुक निकालनी बहुत जरूरी है। और इसी हुक के ऊपर हम पूरा आज बात करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन हाउ टू कनेक्ट, फाइंड दैट कनेक्टर डिटेक्टर विद इन द सेल्स प्रोसेस। अब एक एग्जांपल लेते हैं मोबाइल शॉप में। समझो एक मोबाइल बेच रहे हो आप, एंड एक क्लाइंट आता है। अरे क्लाइंट बोलता है बैटरी लो हो जाती है ना तो दिमाग का दही हो जाता है। मिल गया कनेक्टर। प्रॉब्लम क्या है, इसको बैटरी से प्रॉब्लम है, इसकी अगर बैटरी कम हो जाती है तो इसको बहुत प्रॉब्लम है, मतलब आपको हुक मिल गई। तो यहाँ पे सिर्फ कनेक्टर मिला है, अभी हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि कनेक्टर को फाइंड आउट कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। कनेक्टर डिटेक्टर ये हमारा स्ट्रेटेजी है। उस स्ट्रेटेजी का पहला फेज है कनेक्टर को डिटेक्ट करो। तो यहाँ पे उसका डिटेक्टर मिल गया कि बैटरी का प्रॉब्लम, मतलब इसको ऐसा मोबाइल देना पड़ेगा कि जिसकी लॉन्ग लाइफ बैटरी हो, अच्छे तरह से चले, वो वाला कनेक्टर मिल गया। दूसरा कैसा है कि वो बोलता है कि फोन हैंग हो जाता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, कनेक्टर मिल गया। क्या हो रहा है कि इसको स्टोरेज वगैरह प्रॉपर चाहिए, मतलब इसको फास्ट प्रोसेसर का मुझे फोन देना पड़ेगा, अदरवाइज इसको हैंग वाला प्रॉब्लम हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कनेक्टर मिल गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द कनेक्टर फ्रॉम द कन्वर्जन, वॉट एवर काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट। जो भी वो बात कर रहा है ना, वहां से ही निकालना पड़ेगा, कहीं और से नहीं निकल के आएगा। तो वो क्या बात कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, मतलब उसका जो पुराना जो भी प्रोडक्ट है या उसका जो भी वेंडर है, उससे उसको कुछ तो प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ये वेंडर स्विच कर रहा है या फिर फोन स्विच कर रहा है, कंपनी स्विच कर रहा है, जो भी है। तो उस कनेक्टर को फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो है क्या। एक बार वो डिटेक्ट हो गया उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई, बिल्कुल ध्यान देना है, ध्यान पूर्वक देना है, बता एकदम उसके ऊपर ध्यान रखना है कि वो बात कैसे कर रहा है, वो कौन सी चीजों को प्रोजेक्ट कर रहा है उनकी बातों में, वो क्या चीजों को पॉजिटिव लेके बोल रहा है, वो कौन सी चीजों को निगेटिव वे से बोल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है जब वो बात कर रहा है, तो वो किस वे से बात कर रहा है। ये सारी चीजों को बहुत ही ध्यान से आपको अंडरस्टैंड करना है और उसको ऑब्जर्व करना है। अगर क्लाइंट आपके सामने है तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें तभी हो पाएगी जब वो क्लाइंट आपके सामने होगा, लेकिन अगर आप फोन पे भी बात कर रहे हो तो भी उसकी बातों से आपको वो कनेक्टर ढूंढना पड़ेगा कि वो आपको क्या बताता है। लेकिन वो पता तभी चलेगा जब आप फोन पे हो, तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। तो पावरफुल क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरह से आप आपके क्लाइंट को एक पावरफुल क्वेश्चन, एक हुक देके उसको बोलने के लिए, मतलब उसने खुद होके चीजों को बताना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। दैट इज व्हाट इज द टैग। बहुत बार जो ये स्टारबक्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड है ना, वो क्या करते हैं कि क्लाइंट को बुलवाना है उनसे, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, कुछ ऑफर देते हैं और वहां पे मग पे उनका नाम लिखते हैं, कस्टमर का नाम लिखते हैं, और वो जानबूझ के गलत लिखते हैं। ठीक है, जानबूझ के गलत लिखते हैं, तो फिर कस्टमर जो है उनको बताता है कि ये मेरा नाम ऐसा नहीं ऐसा है, एंड देन स्टार्ट द कन्वर्सेशन, एंड दैट इज व्हाट इज द हुक टू स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन, एंड देन दे स्टार्ट स्पीकिंग। Then you may ask something, they may share something, and that's how conversation start. But there should be some point wherein that conversation needs to be get started.
गेटिंग माई पॉइंट? तो उस हुक को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। वो पता चलेगा जब वो बात करेगा, जब वो बोलेगा। आप ही बोलोगे, आप ही बताते रहोगे तो फिर वो लेना नहीं है। इस बात को समझ लो पक्का बिल्कुल कि आपको पहले उनको सुनना है, उसके बाद आपको बताना है। सेलिंग सबसे लास्ट आएगा, प्रोडक्ट सबसे लास्ट आएगा। पहले तो उसकी नीड आइडेंटिफाई करो। जो हम बोलते हैं ना कंज्यूमर का पैटर्न, कंज्यूमर का बिहेवियर, सबसे पहले वही आता है। मेरे पास बहुत सारे केसेस है जहां पे विदाउट कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी किए हुए अगर वो ब्रांड ने, चाहे वो कितनी भी एस्टेब्लिश और कितनी भी बड़ी ब्रांड क्यों ना हो, अगर वो ब्रांड अपने आप को प्रोजेक्ट करती है तो उतने ही जोर से वो धमाल से गिर भी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, उनकी नीड एनालिसिस करना, आइडेंटिफाई करना, उनकी हुक। ये सारी चीजें जो है वो प्रोडक्ट सेल करने से पहले आती है, बाद में सारी चीजें आती है। तो आपको आपका क्लाइंट, आपका कंज्यूमर अंडरस्टैंड करना, दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट थिंग। तो सबसे उसके बाद अभी ये जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है नाइस एनालिसिस। ये जो है नाइस एनालिसिस, इसमें आता है सबसे पहले उसकी नीड अंडरस्टैंड करो, उसका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो, उसका कंसर्न देखो और वो क्या चाहता है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो ये चार चीजें जिसको हम नाइस एनालिसिस कहते हैं। पहले हमने ग्रो मॉडल देखा, दूसरा जो मॉडल है उसे हम नाइस एनालिसिस कहते हैं। नाइस एनालिसिस में हम ये चार बातों का बहुत ध्यान पूर्वक स्टडी करते हैं। अच्छा, कौन सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसको इस प्रोडक्ट की नीड आई, तो नीड एनालिसिस करना पड़ेगा। अच्छा, लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितना जरूरी है इसके लिए ये प्रोडक्ट खरीदना, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि रियली वो सीरियस है या नहीं है। फिर उसका कुछ तो कंसर्न होगा, कुछ तो पेन एरिया होगा, कुछ तो उसका प्रॉब्लम एरिया होगा जिसकी वजह से वो स्विच करना चाहता है। या फिर उसे या तो पेन आइडेंटिफाई करो या फिर प्लेजर आइडेंटिफाई करो, या तो उसका पेन पॉइंट होगा या तो फिर उसको उससे प्लेजर मिलने वाला होगा। तो ये दोनों चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। start giving respect to you and that's how actually that conversation will move on. So ये बात को बहुत अच्छे से आपको समझना है कि आप में इंटरेस्ट नहीं है क्लाइंट को उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप उसको उससे किस तरह से बाहर निकालोगे, उसके लिए वो आपके पास आया है। आप क्या करते हो, अलाना फलाना टलाना, आपके कितना बड़ा ब्रांड है और आपने कितने अवार्ड जीते हैं उससे उसको कोई मतलब नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इस बात को अंडरस्टैंड करिए। अब हुक कैसे आइडेंटिफाई करनी है, तो उसका जो कनेक्टर है वो डिटेक्ट करने के लिए क्या हो सकता है। किसी का स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का मूवी में इंटरेस्ट हो सकता है, कोई म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, कोई भजन कीर्तन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, किसी को मोटिवेशन इंस्पिरेशन बहुत अच्छा लगता होगा, कोई टेक सेवी होगा, उनको गैजेट में इंटरेस्ट होगा, कोई अगर लेडीज है उनको सेल्फी में इंटरेस्ट होगा, कोई महिलाएं हैं उनको कुकिंग में इंटरेस्ट होगा। तो ये जो है ये हुक है,
इस हुक को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसका नाइस एनालिसिस जब आप करते हो तो नाइस एनालिसिस में उसका इंटरेस्ट, जैसे एक लास्ट टाइम हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी रिसर्च बिफोर मीटिंग, तो ये जो रिसर्च करना है उस क्लाइंट को डायरेक्टली मिलने मत जाओ, उस क्लाइंट के बारे में जानो, वो उसको पहचानो कि एग्जैक्टली क्या है, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल देखो, उसकी वेबसाइट देखो, वो एग्जैक्टली क्या करता है, उसके इंस्टा, ट्विटर, उसके फेसबुक, ये सारी चीजों के उसके किस तरह से पोस्ट है, क्या वो करता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर वो क्लाइंट आपको लाखों का बिजनेस देने वाला है तो इतना टाइम आपको उसके ऊपर देना ही पड़ेगा, उसका एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा। ये आप पहले कर सकते हैं, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन भी आपको इसके बारे में पता चल सकता है कि हुक को कैसे आइडेंटिफाई करें, वो डिटेक्टर किस तरह से निकाले। तो ये सारे हुक पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें ही आएंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हुक आपको कस्टमर दे सकता है कि वो उसका पिन पॉइंट होगा, इंटरेस्ट एरिया होगा, गोल होगा, जो भी है। तो इस तरह से आप कुछ पॉइंट्स को याद रख के कि किस तरह से उसके कन्वर्सेशन से मुझे कुछ ना कुछ हुक मिल रही है, कुछ ना कुछ कनेक्टर मिल रहा है, तो दैट्स हाउ यू मे आइडेंटिफाई। एक बार कनेक्टर मिल गया तो फिर क्या करना है, रिपीट द कनेक्टर, इसे कहते हैं पैरेटिंग एंड पैराफ्रेजिंग। अब पैरेटिंग पैराफ्रेजिंग जो एनएलपी का लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा मैंने बताया था, मिररिंग, मॉडलिंग, मैचिंग टेक्निक, ये जो है ये उसी तरह से काम करता है। मिररिंग मैचिंग में क्या करते हैं, हम उनकी जो पूरी मतलब बॉडी लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा मैच करने की, मिरर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पैरेटिंग एंड पैराफ्रेजिंग में हम क्या करते हैं, हम एक बार कनेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं एंड फिर वो जो कनेक्टर है उसको हम रिपीट करते हैं। कैसे? अब हमने पिछला वाला एग्जांपल देखा था मोबाइल शॉप का, उस मोबाइल शॉप में उसने बोला कि जब मोबाइल हैंग हो जाता है ना तो दिमाग की दही हो जाती है, तो आपको क्या कहना है उस टाइम पे? बिल्कुल ठीक कह रहे सर, सचमुच जब मोबाइल हैंग हो जाता है ना तो समझ में नहीं आता है क्या करे क्या नहीं, बहुत प्रॉब्लम फेस करना होता होगा आपको, या फिर बहुत सारी मुश्किलें आती होगी, डिफिकल्टी आती होगी, मैं समझ सकता हूँ। एंड दैट इज हाउ यू गेट कनेक्टेड विद द क्लाइंट। यहाँ पे क्या हुआ, आप उनके दुख में शामिल हो। अब एकदम से ये मत बोलो उनको, हाँ मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, नहीं, डोंट डू दैट मिस्टेक एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। पैरेट ये जो है पैराफ्रेजिंग एंड पैरेटिंग, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वो रिपीट करना है, थोड़ा सा एंगेज करो क्लाइंट को कि वो जो प्रॉब्लम बता रहा है उसके हाँ में हाँ मिला के आपको क्या बताना है कि हाँ सही, सचमुच ये प्रॉब्लम है और इस ये प्रॉब्लम होता है तो मुझे भी परेशानी होती है, कोई भी परेशान हो जाएगा। दूसरा क्लाइंट जब बोल रहा है कि बैटरी लो हो जाती है तो मैं परेशान हो जाता हूँ, बात तो आप ठीक कह रहे सर, सचमुच बैटरी अगर लो हो जाती है तो कितनी मुश्किल आती है, हमें फिर एक्स्ट्रा बैकअप लेना पड़ता है या फिर चार्जर लेके साथ में घूमना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। इवन ये डिफिकल्टी तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट को आती है। तो दैट इज हाउ यू मे रिपीट, आपको रिपीट करने का भी टेक्निक समझना चाहिए, ऐसे नहीं आप बोल रहे हो परेशान हो जाते हैं, हाँ ना मैं भी परेशान हो जाता हूँ, या फिर अगर उसी टोन में आपने बोल दिया तो वो गलत वे से भी चला जाएगा। तो try to understand, identify the problem and give the solution in a right and correct manner. It should be a very polite manner. It should not be like कि आप उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो या फिर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को, इवन इस स्ट्रेटेजीज को भी इम्प्लीमेंट करने की टेक्निक है और वो स्मार्टली आपको यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर वो गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है कम्युनिकेशन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द स्ट्रेटेजी। Firstly, identify the connector, detect it, and then do repeating. Repeating is paraphrasing and parroting. तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब कनेक्टर को रिपीट करना मतलब अभी समझो ये मेरा सॉकेट है, ये मेरा प्लग है, मुझे बल्ब जलाना है, तो अगर मैं इधर सॉकेट लेके जाऊंगी तो भी बल्ब नहीं जलेगा, इधर लेके जाऊंगी तो भी बल्ब नहीं जलेगा, मुझे उस सॉकेट में उसको डालना पड़ेगा, जब कनेक्शन हो जाएगा तभी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या जो भी है वो वर्क करेगा। तो उसी तरह से उसका कनेक्टर क्या है, उसी कनेक्टर को लेके आपको पैरेटिंग एंड पैराफ्रेजिंग को यूज करना है, कोई और नहीं। वो बैटरी के इसके बारे में बात, बैटरी के बारे में बात कर रहे हो आप, हैंगिंग के बारे में बात कर रहे हो आप, किसी और परेशानी के बारे में बात कर रहे हो, वैसे नहीं चलेगा।
तो उसका प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई किया, कनेक्ट किया, डिटेक्ट किया एंड देन रिपीट किया. सो आई होप दिस मस्ट बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ. सो कम्युनिकेशन नहीं होता है सेल्स में, कम्युनिकेशन होता है. कम्युनिकेशन मतलब उनको जानो, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी बात समझो, उनका प्रॉब्लम समझो. दैट इज व्हाट इज द की in any kind of sell, whether it is product sell, whether it is service selling, whatever you are selling, but कम्युनिकेशन नॉट कम्युनिकेशन. आप कितना अच्छे से बोल रहे हो, आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा इंग्लिश बोलते हो, आप कितने अच्छे से आए हो, उससे कस्टमर को कुछ लेना देना नहीं है. कस्टमर को उसके प्रॉब्लम में इंटरेस्ट है, आप में इंटरेस्ट नहीं है. इस बात को आपको समझना पड़ेगा. देन जो हम जनरली सेल में गलती कर जाते हैं, हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं. हमें कन्विंस नहीं करना है. कंसल्टेटिव सेलिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि connect with the problem, don't convince them. If you try to convince them, they will run away from you. So that is what is the key. You need to understand here up till now, whatever conversation we had, within that we understand that how we need to do the consultative selling, wherein we don't have to give that much importance to communication. Rather, we need to understand, identify the problem. So problem identification, nice analysis, that is what is the first key. Second key is you don't need to convince your client. You need to just connect them properly, identify their pinpoint, their problem point, whatever pain they are having, and that's how you need to actually give them solution, try to help them out, and then you need to repeat the connector. That's what we have seen up till now. So let's move ahead. तो एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं. एक बार कनेक्टर को डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर वो जो पिन जुड़ जाती है उसके बाद ही तो बल्ब जलेगा. उसके बाद आपको रिपीटिंग, जो पैराफ्रेजिंग एंड पैरेटिंग वाला जो अपना एक आज का स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को यूज करना है. तो मुझे लगता है यहां तक हमने देख लिया कनेक्टिंग, पैराफ्रेजिंग, ग्रो मॉडल, कंसल्टेटिव सेलिंग. अभी ऑल इज वेल, एनी डाउट, any queries up till now? इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे जाने वाले हैं. तो बिफोर गोइंग टू अनदर नेक्स्ट पॉइंट, ऑल इज वेल, एनी डाउट, एनी क्वेरी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ. कोई किसी अब तक हमने जो बात किया उसमें किसी को कुछ शेयर करना है, शेयर करना चाहते हैं? अदरवाइज लेट्स मूव अहेड. ऑल इज वेल. चलो, थैंक यू मानस जी. आगे बढ़ते हैं फिर. हाउ टू क्लोज द सेल. अब क्लोजिंग पे आते हैं. अब हमने सीख लिया कि कनेक्टर को डिटेक्ट कैसे करना है, पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग को यूज कैसे करना है, कंसल्टेटिव सेलिंग कैसे करना है, ग्रो मॉडल को कैसे यूज करना है, नाइस एनालिसिस कैसे करना है. ये सारी चीजें हमने अब तक देख ली. अब हम आते हैं कि एग्जैक्टली ये क्लोजिंग की प्रोसेस होती क्या है, इसमें कौन कौन से टाइप है, तो हम किस तरह से इस सेल को क्लोज कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट. सो देयर आर फ्यू ऑफ द पॉइंट. जस्ट अ मिनट, कोई तो आया है, मैं उनको जरा एडमिट कर लेती हूँ. Okay, so there are 5 techniques we are going to see today in the closing, sales closing technique. So the first sales closing technique is assumptive close. Assumptive close में क्या होता है? Acting as the prospect is ready to buy your product. मतलब आपको पता है कि ये अभी तक रेडी नहीं है, आप जानते हो उसको टाइम लगने वाला है, ये डिसीजन अभी नहीं लेने वाला है, लेकिन आप एज अ सेलर आप ये अज्यूम करते हैं कि ऑल इज वेल. Whatever I have told to them, they are convinced. And once you assume it, what you will do is you will actually project in such a way to your prospect that okay, ठीक है, फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट भेज दूंगा, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें आप मुझे बता दीजिए, एंड मैं आपको पेमेंट लिंक भेज दूंगा, एंड उसके पेमेंट करने के बाद आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको आगे की प्रोसीजर बता दूंगा. So that is how you are assuming that a client is already convinced, and then you are assuming that sale is already closed. So this is what is the first kind of closing technique, wherein
यू एक्चुअली प्रोजेक्ट इन सच अ वे, आप इस तरह से क्लाइंट को दिखाते हो कि अच्छा अभी सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गए हैं, सारी मीटिंग्स में अच्छे से उनको आउटपुट मिल गया है। फिर आप एक पॉइंट पे आके, क्योंकि कस्टमर बहुत टाइम ले रहा है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो आपको ही थोड़ा सा उसको इस तरह से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, इस तरह से दिखाना पड़ेगा कि आपने अज्यूम कर लिया है कि वो कन्विंस हो गया है और आप आपको आगे की प्रोसीजर बताना शुरू कर दो। एंड दैट इज हाउ यू आर एक्चुअली क्लोजिंग द सेल। तो वहां पे एक आपको थोड़ा सा उनको मतलब धोखे में डालना है, धोखे में इन द सेंस कि बहुत क्लियर नहीं है, उसको क्लैरिटी नहीं है, आप जानते हो, लेकिन फिर भी ऐसे अज्यूम करना है। तो दिस इज व्हाट इज फर्स्ट क्लोजिंग टेक्निक, दैट इज अजम्पटिव क्लोज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्लोजिंग टेक्निक दैट इज अर्जेंसी क्लोज। अब अर्जेंसी क्लोज में क्या होता है, वेर यू प्लेस प्रेशर ऑन द प्रोस्पेक्ट टू डिसाइड। अब समझो आपने ऑलरेडी उसको 10 कॉल कर लिए, 2-4 मीटिंग हो गया, सब कुछ ठीक है, उन्होंने अब तक नहीं भी नहीं बोला है, हाँ भी नहीं, हाँ तो वो बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा टाइम ले रहे हैं, एक्चुअली उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कब डिसीजन लो, क्योंकि कोई अर्जेंसी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो अर्जेंसी को क्रिएट करना पड़ेगा, आपको इस तरह से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब ये मौका गया तो गया, इस तरह से आपको उनको बताना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, लास्ट बचा है, ये एक ही पीस बचा है, ये लास्ट पीस गया तो फिर ये सेल भी गया, और ये प्राइस में तो ये प्रोडक्ट मिलने ही वाला नहीं है, इस तरह से बताते हैं ना लोग, ये स्टॉक में ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं इसके बाद। अगर आज चला गया ना, मेरे पास इसके लिए बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं, लेकिन आप अभी यहाँ पे मेरे सामने हो इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। एंड दैट इज हाउ एक्चुअली यू हैव टू क्रिएट दैट अर्जेंसी, दैट दे शुड थिंक, ओह अच्छा मैंने अभी नहीं लिया तो फिर मुझे नहीं मिलेगा, मतलब मैं लूज कर जाऊंगी, जो भी है। इस टाइप से आपको कुछ तो उनको एक पॉइंट ऑफ अर्जेंसी देना पड़ेगा, एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि उनको वो डिसीजन लेने में हेल्प हो। सो दैट इज व्हाट इज अनदर क्लोजिंग टेक्निक विच इज कॉल्ड एज अर्जेंसी क्लोज। एंड देन आता है समरी क्लोज। समरी क्लोज में क्या होता है, अजम्पटिव जैसे आप उनको बता दो कि ठीक है अच्छा मतलब ये सारी चीजें, एंड देन उनको फिर से आपने जो भी बताया है उसका एक समरी बता दो कि आपको देखो ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इस तरह से हमने पूरा डिस्कशन किया है अब तक, तो मैं अभी पेमेंट लिंक भेज रही हूँ, आप इस पे पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद मैं आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करती हूँ। एंड दिस इज हाउ यू नीड टू समराइज द होल थिंग, वॉट एवर अप टिल नाउ हैज हैपेंड विद इन योर कॉन्वर्जेशन, एंड देन just project in such a way कि okay they are also ready, you are also ready, and now you have already closed, in such a way you have to summarize। मतलब इस तरह से उनको बताना है कि अच्छा 1 2 3 4 ये सारे बेनिफिट्स है, ये सब कुछ मिलना है, ये ऑफर है, ये एडिशनल बेनिफिट है, ये बोनस है, सब कुछ बता दिया, समरी बता दी, तो ठीक है फिर आप कब कर रहे हैं पेमेंट, मतलब इस टाइप से आप इस उसको लेके जा सकते हो। डायरेक्टली जो पेमेंट की बात है, अभी जैसे मैंने बताया कब करें पेमेंट, उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ट्विस्टेड मोड में ही आपको लेके जाना पड़ेगा। जब आप समरी करते हो तो समरी पे ज्यादा फोकस करना है, पेमेंट पे बाद में आना है, मतलब प्रोडक्ट पे बाद में आना है। तो दैट इज हाउ थर्ड सेलिंग टेक्निक, समरी क्लोज। Moving on to the next selling technique, the objection close. Objection close में closing the deal by asking for any objection customer might have with the product. अभी उनको समझो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या चीज आपको लगती है कि जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ आपको लगता है कि जो आपको रोक रहा है डिसीजन लेने से, तो क्या ऑब्जेक्शन आ सकता है कस्टमर की तरफ से, उसको आप ही प्रोजेक्ट कर लो, आप ही पिन पॉइंट कर लो। तो फिर अगर उसने उस ऑब्जेक्शन को लेके कुछ पॉइंट बताया, तो फिर आप एक एग्जाम्पल दे दो जहां पे आप रेफरेंस देते हो कि वो जो गुप्ता जी थे ना, उनको भी इसी तरह से लग रहा था कि पता नहीं इसका बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, लेकिन पता है क्या हुआ, उन्होंने ये कोर्सेज खरीदे और क्या हो गया, उनकी सेल तो बढ़ ही गई, लेकिन उनका बिजनेस जो उन्होंने 5 साल के लिए गोल रखा था वो उन्होंने 1 साल में ही कंप्लीट कर दिया है। उनके 100 फ्रेंचाइजीज उन्होंने देखा था, उनके 1000 फ्रेंचाइजीज ग्रो हो गए हैं, इतना ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उनके बिजनेस को मिल गया है। एंड दैट इज हाउ एक्चुअली यू आर एक्चुअली creating, projecting the objection, and at the same time you are giving the solution also with some kind of reference.
आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ऑब्जेक्शन आपको ही उठाना है एंड सॉल्यूशन भी आपको ही देना है, किसी और का रेफरेंस क्लाइंट को देके एंड बता के कि किस तरह से मैंने इस प्रोडक्ट का किसी और को क्या हेल्प हुआ और उसका बिजनेस किस तरह से ग्रो हुआ है, या जो भी उसको बेनिफिट हुए हैं उस बेनिफिट्स के बारे में बात करनी है। तो दिस इज व्हाट इज ऑब्जेक्शन क्लोज टेक्निक। And the next closing technique is the opportunity close technique. Opportunity close technique में क्या होता है? Stressing on what the customer will miss out if they do not buy your product. यहाँ पे इस तरह से बताना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आ गया तो कभी मिलेगा ही नहीं, ये ऑफर आएगा ही नहीं बाद में। इस तरह से आपको बेनिफिट आपने बता दिए, बेनिफिट बताने के बाद लॉस क्या होगा? अच्छा, ये आपने लिया तो ये बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन आपने नहीं लिया तो क्या होगा? तो इस तरह से आपको उसमें अपॉर्चुनिटी दिखानी है कस्टमर को, और उस पिन पॉइंट को स्ट्रेस करना है कि अगर उसने अब नहीं लिया तो कितना लॉस उसको होने वाला है। उसने खरीदा तो उसको बेनिफिट होगा ही, लेकिन उसने नहीं खरीदा तो उसको कितने प्रॉब्लम्स होंगे। इस तरह से उसको आपको प्रोजेक्ट करना है एंड उस सेल को क्लोज करना है। So these are the different kind of sales closing technique. Someone is waiting, तो मैं उनको admit करती हूँ. Meanwhile, if you are having any doubts or any queries up till now, so please let me know. Okay, someone was waiting. I can't see. Anyways, all is well. आगे बढ़ना है. Sales closing technique. है last point. So any doubts, any queries? Should we repeat anything or should we discuss few more points? Anything from your end? किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ इनपुट देना है, किसी को कुछ बोलना है? ऑल क्लियर? ओके, एनी अनदर इनपुट? अगर आपको ऐसा कोई क्लाइंट है जो आपको डिफिकल्ट क्लाइंट लग रहा है, कोई अगर शेयर करना चाहे कि किस तरह से वो सेल क्लोज होने में प्रॉब्लम हुई और किस तरह से आपने उसे क्लोज किया, अगर कोई शेयर करना चाहता है तो आप बिल्कुल ओपन है आपके लिए फोरम. यू मे शेयर योर एक्सपीरियंस. Should I stop sharing now? That was the last slide. So once I'll summarize whole thing. Today we were started with the golden statement कि लोगों को सेल होना, सोल्ड होना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनको अगर हेल्प किया तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है. And that's how we were started. Then we understand what do you mean by consultative selling. तो हमने consultative selling की पूरी process understand की. कंसल्टेटिव सेलिंग के बाद हमने ग्रो मॉडल को डिस्कस किया, जहां पे हम गोल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, रियलिटी देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, देन वे फॉरवर्ड करते हैं. तो पूरी जो ग्रो एनालिसिस की प्रोसेस थी वो हमने समझे. उसके बाद हमने ग्रो एनालिसिस के बाद हमने नाइस एनालिसिस देखा. नाइस एनालिसिस में हमने समझा कि किस तरह से हमें क्लाइंट का नीड अंडरस्टैंड करना है, उनका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है, वो कंसर्न आइडेंटिफाई करना है. वो सारी चीजें हमने नीड एनालिसिस में देखी. उसके बाद हमने सबसे ज्यादा आज अगर डिस्कस किया होगा तो अबाउट कनेक्टर डिटेक्टर थिंग. सो कनेक्टर डिटेक्टर में सारी प्रोसेस हमने देखी कि किस तरह से उसको डिटेक्ट करना है, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से आइडेंटिफाई होने के बाद उसको मर्ज करना है उस पेन पॉइंट के साथ with the help of parroting and paraphrasing. तो वो सारी चीजें हमने देखी कि कनेक्टर एक बार मिल गया, एक बार डिटेक्ट हो गया तो किस तरह से फिर हम उसको क्लोज करने में उसकी हेल्प लेते हैं. तो ये सारी चीजें हमने देखी और उसके बाद हमने टोटल 5 डिफरेंट कंसल्टेटिव सेलिंग की क्लोजिंग टेक्निक्स देखी है कि किस तरह से हम सेल्स को क्लोज करने में, जहां पे हमें प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है कि क्लाइंट जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्लाइंट जो है वो या तो बहुत टाइम लगा रहा है, जो भी है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको किस तरह से हमें क्लोजिंग पे लेके आना है, उसको सेल कैसे करना है, एक बार वो क्लोज हो गया तो उसको क्रॉस सेल, अप सेल किस तरह से करना है, वो सारी चीजों को हमने आज डिस्कस किया. तो अभी लोग आ रहे हैं, अभी तो हमारा खत्म हो गया है. तो एनीवेज, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स और क्वेरीज, वी मे डिस्कस. इफ यू वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग, we may have that much time, so 5-10 minutes we may discuss. If at all nothing is there, then we may conclude. I'll give meanwhile I'll give your discussion that feedback form. Just a minute. Yes, clear. Madam, hello ma'am. हाँ.
अच्छा, आप आईबीसी है ऑलरेडी, राइट? एंड ये बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो वही बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे कि वन टाइम पेमेंट किया। एक तो दो चीजों में डिफरेंस होना चाहिए कि अगर वो पार्ट पेमेंट करते हैं या फिर ईएमआई में क्रेडिट में वो लेते हैं, तो वो ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जैसे वो वाला एग्जांपल ले लो कि जहां पे छोटा कोका कोला 80 रुपए का दे रहे हैं, बड़ा वाला 100 रुपए का दे रहे हैं, मतलब उसको फायदा कहाँ दिख रहा है? बड़ा वाला लेने में। वैसे ही उसको वो वाला फायदा दिखाओ कि क्रेडिट में आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड है जिन्होंने क्रेडिट पे लिया है, उनका अभी आप मेरा एग्जांपल बता सकते हो, मैंने क्रेडिट पे आईबीसी लिया था, मेरा पूरा का पूरा पैसा अभी तक एक तो अटका हुआ है, दूसरा कि एक चीज ऐसी हुई है, मतलब ये एग्जांपल क्लाइंट को बताने के लिए कि एक एडवांस और बड़ा बिजनेस उसमें जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसकी वजह से मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेरा खुद का सिबिल स्कोर डाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं तो ईएमआई दे रही हूँ, लेकिन अभी मेरी क्योंकि ईएमआई बड़ा बिजनेस पे कर रहा है, तो इस तरह से आप किसी और कस्टमर के थोड़े से पेन एरियाज कुछ आइडेंटिफाई करो, किसी के एग्जांपल्स बताओ जहां पे उनको लगे कि अच्छा ये सचमुच बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मैडम को 1 साल से प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कोई और भी होंगे, ऐसे 2-3 थोड़े से आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आपको स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। You need to be a very good storyteller in this sales field. If you are there, you need to be a very good storyteller. स्टोरी बताओ, किस तरह से लोगों को प्रॉब्लम हुई ये बताओ, उसको कितना फायदा होगा ये लेने से, वन टाइम लेने से, वो सारी चीजें। लोगों के पास पैसे होते हैं, वो सिर्फ बताने के लिए है कि पैसे नहीं है, पैसे सबके पास होते हैं, सिर्फ डिसीजन लेना। अभी जिनको एडमिशन लेनी है इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन कैसे ना कैसे कहीं से तो वो एडजस्ट करके लाते ही है ना। तो अगर उनका विल है तो कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट करके आपको दे ही देंगे, लेकिन अगर विल नहीं है तो नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह से आपको ट्विस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर सचमुच उसके पास पैसे नहीं है, जेन्युइन रीजन है, तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये 2-3 चीजें, एक तो आपको स्टोरी टेलिंग यूज करना पड़ेगा, रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, एंड तीसरा वो क्या लॉस होगा उसका, लॉस पे ज्यादा फोकस करो, पेन पे ज्यादा फोकस करो। अदरवाइज पेन अगर उसके लिए काम नहीं कर रहा है तो प्लेजर पे काम करो। जनरली पेन ज्यादा काम करता है प्लेजर से, क्योंकि प्लेजर तो एनी हाउ हम सब है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जब अर्जेंसी आती है, पेन वाला एरिया होता है ना, तभी प्रॉब्लम होती है। तो दीज आर 2-3 टेक्निक्स यू कैन यूज व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज। होप आई माइट हैव आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू मैडम, मेरा क्वेश्चन है। यस। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन है मैम। हाँ मैम, मैं अभी दिसंबर लास्ट में ही मतलब आईबीसी बना हूँ, मैं नया हूँ, तो मैं अभी तक सेल नहीं किया हूँ स्टार्ट। तो मैं अभी ट्रेनिंग चल रहा था और लर्न कर रहा था। अच्छा तो मैम अभी मेरा तो लीड में कहाँ से ये नहीं किया, लेकिन मेरा जो कांटेक्ट है, मेरा जो दोस्त है, फ्रेंड्स है कॉलेज में, जो कंपनी में, तो मैं उनको कैसे अप्रोच करूँ मतलब बिजनेस के लिए? हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको आप डायरेक्टली अप्रोच करो, लेकिन इस तरह से अप्रोच करो कि आपको क्या क्या फायदे हो रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको यही प्रोग्राम को बहुत अच्छे से देखना है और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज को ले लो जिसमें आपके फ्रेंड्स को इंटरेस्ट हो सकता है। फिर आप क्या करो, थोड़ा बहुत उनका आपका जो कॉमन ग्रुप वगैरह होगा वहां पे कुछ आपके एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना शुरू कर दो, कि जहां पे आपने ये सीखा, ये सीखने से आपको ये फायदा हुआ। मतलब उनको ऐसे लगना चाहिए कि आपने बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस हो रहे हैं। तो दे शुड एक्चुअली मींस यू शुड क्रिएट दैट क्यूरियोसिटी, आपको एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, उससे उनको अवेयरनेस हो, उनको पता चले कि आपने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया है और आपके पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। फिर उसके लिए आप उनको फिर एक बहुत अच्छा 1-to-1 करो, या फिर एक अच्छा सा कुछ सेमिनार, या जिस तरह से हम मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे एक आधा जस्ट जो बोलते हैं ना कॉमन मीटिंग, तो कॉमन मीटिंग ले लो, उसमें मुझे जस्ट शेयर करना है मुझे क्या क्या फायदे हो रहे हैं, एंड देन एक्चुअली वंस दे अंडरस्टैंड कि आपको किस तरह से फायदे हो रहे हैं, फिर उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करो। अदरवाइज क्या होता है ना, जो लोग हमें जानते हैं
उसको हमने बेचने की कोशिश की ना, तो वो हमसे भागना शुरू करते हैं। तो अप्रोच जो है, अप्रोच बहुत राइट होना चाहिए। सेल करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है, और कोई भी फर्स्ट जब आप कॉल करते हो, फर्स्ट सेकंड टाइम सेल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं करनी है। सिर्फ उनको रियलाइज करते जाना है, उनको दिखाना है कि ये प्रोडक्ट मेरे लाइफ में आने के बाद मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो गई, मैं कितना सुखी हो गया, मैं कितना खुश हो गया, वो दिखाना है। अरे मैं तो दुखी हो गया, मैं तो परेशान हो गया, ऐसे अगर बता दिया ना तो भाग जाएंगे लोग। तो ये जो अप्रोच है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली सोचो कि अच्छा पहले क्या करो, पहले लिस्ट आइडेंटिफाई करो कि इसके लिए कौन कौन ऐसे लोग हैं। अब आपको आपके फ्रेंड जो है वो पता होंगे कि उसके इंटरेस्ट क्या है, उनके हॉबीज क्या है। अगर पता नहीं है तो थोड़ा सा रिसर्च करो, जैसे मैंने लास्ट टाइम सिखाया था ना कि रिसर्च एनालिसिस कैसे करना है। तो आपके जो 2-4 फ्रेंड है, उनकी फेसबुक प्रोफाइल देखो, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल देखो, उनकी पूरी स्टडी कर लो, उनका देखो कि मतलब वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है। एक बार वो आइडेंटिफिकेशन हो गया तो आपके लिए राइट कौन कौन से है वो वार्म क्लाइंट की लिस्ट बनाओ। एक बार आपका लिस्ट बनाओ कैंपेन हो गया, उसके बाद हर एक के लिए स्ट्रेटेजी डिसाइड करो कि मुझे कंसल्टेटिव सेलिंग देना है तो मैं किस तरह से प्रोजेक्ट करूं। तो 1 2 3 जैसे मैंने अभी आज कनेक्टर डिटेक्टर बताया है, इसका कनेक्टर कहाँ मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी हुक आइडेंटिफाई कर ली है, डिटेक्ट कर लिया है, इसका कनेक्टर यहाँ मिलेगा, इसका कनेक्टर यहाँ मिलेगा। उस टाइप से 1 to 1 करो। 1 to 1 में आप क्या करोगे, 1 to 1 में बेनिफिट्स आप शेयर करोगे, उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करोगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको कौन सी चीज पे आप सॉल्यूशन दे सकते हो, किस तरह से बेनिफिट होगा, किस तरह से उनको बहुत फायदा हो सकता है, ऐसे बताओ। एंड देन ये सारी चीजें जो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मीटिंग एंड थर्ड कम्युनिकेशन तक करनी है। फोर्थ कम्युनिकेशन में प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो है डायरेक्टली अगर करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाओगे, जो अपना पूरा कंसल्टेटिव सेलिंग का प्रोसेस है उसको एज इट इज फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने हैं। लेकिन उसकी एक स्ट्रेटेजी है। बहुत लोग क्या करते हैं, गलती कहाँ करते हैं कि डायरेक्टली सेल करने की कोशिश करते हैं। अरे अरे मैंने बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर दिया है, देखो मेरे पास ये है, ये ऐसा फायदा हो रहा है, वैसा बहुत ज्यादा बताते हैं। बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, उनको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आपको सचमुच उससे फायदा हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। सो दीज आर 2-3 processes and steps you need to follow before actually उनको वो कन्विंस करने से पहले, उनको प्रोजेक्ट करने से पहले। तो मुझे लगता है मैंने आंसर कर दिया है। ये 3 स्टेप्स में काम करो, उसके बाद एक बार आपने आइडेंटिफाई कर दिया, लिस्ट बनाओ, कैंपेन करो। आप पढ़ लो एक बार, लर्निंग इसमें है, एलएमएस में है। लिस्ट बनाओ, कैंपेन, फिर फॉलो अप, कबूत, ये जो प्रोसेसेस है ना वो पूरे एज इट इज ये करो, फॉलो करो। ठीक है मैम मेरा ओके। जो दोस्त बिजनेस करने के लिए इंटरेस्ट है, तो उनको कैसे मैं अप्रोच कर सकता हूँ? वो बिजनेस करने में, सोचते हैं अच्छा मतलब मैं आगे जाकर बिजनेस करूंगा। आगे जाके बिजनेस करेंगे तो यही के लिए उनको ये करो, नर्चर करो। यही के लिए जैसे उनको बोलो कि आपको बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो आपको पता है कि रिस्क भी है बिजनेस में, बहुत सारे फेल्यूर्स भी है, तो पैसा लग जाता है, फिर फेल्यूर आ गया तो फिर प्रॉब्लम होता है। इससे अच्छा है पहले ही जो बड़े बड़े लोग हैं उनके नाम बता दो कि इन लोगों ने अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले गए। अगर ये आपको उनके एक्सपीरियंस सुनने के लिए मिलेगा तो कैसे होगा। आपको रितेश अग्रवाल सिखाएंगे कि बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। अगर आपको अमूल के जो सोडी सर है वो अगर आपको सिखाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बिल्ड करें तो आपको कैसे लगेगा। तो इनसे अगर आप थोड़ा सा नॉलेज लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। एंड इस तरह से फिर यही कि आप उनको इम्पोर्टेंस थोड़ा सा बताओ, एंड दैट्स हाउ यू मे प्रोजेक्ट देम। तो आपको उनको यही प्रोजेक्ट करना है। लेकिन प्रोजेक्ट करने के लिए पहले उनका थोड़ा सा नीड एनालिसिस करो, कौन सा बिजनेस में वो जाने वाले हैं, किस तरह से ये आइडेंटिफाई उनको करना पड़ेगा आपको, कौन सा जो अपने बिलियनियर प्रोफेसर है ना उसमें कौन से बिलियनियर प्रोफेसर के नाम बताने से उनको थोड़ा सा हेल्प होगा, तो वो किनको फॉलो करते हैं वगैरह थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये 2-4 बातें आपको समझनी पड़ेगी, उसके बाद आप उनको फिर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दो। और एक एक 1 to 1 करो एक बार, मतलब सबको एक साथ बताने से हर एक का थोड़ा सा नीड एनालिसिस करने के बाद एक के बाद एक ऐसे बात करो उनके साथ। ठीक है थैंक यू। ओके थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है और या फिर शेयर करना चाहते हैं कोई किसी का एक्सपीरियंस? अदरवाइज वी विल कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप यू माइट हैव गॉट फ्यू ऑफ द इनपुट्स टुडे। अच्छा लगा, नहीं लगा, या फिर फायदा हुआ, नहीं हुआ,
वो भी आप बता सकते हैं। हाँ, फीडबैक फॉर्म मुझे शेयर करना था। मीनवाइल अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं फीडबैक फॉर्म शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। No doubts, no queries? मैंने चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म डाला है। आप फीडबैक फॉर्म शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।